job like always. It was surprising for me. You were so good. Very cool. ये पहली बार आपने पूरा गाना देखा है? Kind of. Yeah. तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ and thanks to the whole Desi Tadka team and Ramji of course. He's like, you're a genius, you know, the way he shoots with perfection is just amazing. It's like he put the whole puzzle together. So thank you very much. I really appreciate it and ये मैं हमेशा याद रखूँगी क्योंकि मुझे ये मौका मिला और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. Thank you और आप सबका भी. Thank you, Riya. Anushka. Yes. जी. So wonderful, you know, when I saw it, of course you are used to reality shows, you're used to people knowing your name, you're used to online भी जब आप गाते हो ना, I think reality shows से because I've been in Indian Idol season 12 in the year 2020 and after that I think the most exciting day in my life is this and entirely thanks to Shabir sir for this amazing opportunity because without him this wouldn't have been possible and also thanks to the entire Desi Tadka music team for this opportunity. I am so excited and this is a banger song. Now I've done my best. Now I leave it up to the hands of Mahadev, Haran Mahadev, to make this song a blockbuster hit. I'm sure it will. All the right buttons have been pressed. मुझे लगता है कि चले जाएगा. I think you just got to reach out there. जैसे हमने बोला कि सलमान भाई ने already story share कर दी है, तो already reaching out शुरू हो चुका है. So take a round of applause for everybody. Just before we open up to questions, obviously. Been exposed so far? It's always been my passion, and since many years, and everybody is aware about it. All the people who know me, but I actually never gave it that much of a push because I'm doing a lot of things. I'm doing events in a big way, and plus managing Salman and all. There's a lot of work, so I never get the time. But now I've made it a resolution that this year I'm going to record as many songs as I can. Excellent. So I think this would be the first single if we The first say single, so, yes. which is with Desi Tadka and talking about the melody, the direction, the lyrics. What do you have to say about that when you finally see your song on the screen? I'm loving it. When I first was called by Shabir to record this, I was really impressed with the track, and I knew it was a sure shot. And I where's Yasin Bhai, because he's the one who really guided me, because I was coming on the mic after a long time. I had sung for a film before this, which I recorded for Vishal Mishra. But since then I've not come in front of the mic, so I think he guided me a lot. But I'm loving it. I love the entire experience. And thank you Desi Music for this lovely opportunity. Will we hope to hear and get more songs with Absolutely, Desi Tadka and absolutely. otherwise? You will hear a lot of songs this year. A lot of songs. Anushka, your duet is with Jordi and both of you sang so beautifully. It sounded so well. There's a very good texture and panache in your voice. What do you have to say for the When I first heard the song, I just told Shabir sir. So when I first heard the song, I just told Shabir sir that this is a certified banger. So and I gave my best, and as did Jordi sir and Viglaf Bhaiya. So now I just leave it up to the hands of Mahadev, Haran Mahadev, to make this song a blockbuster hit. Thank you so much. When we saw you on screen, we thought Badsha has a younger brother. What do you have to say about the whole project? Your whole experience about it? So I was shooting some other thing and Yash Bhai spotted me over there and he was like, oh, you did the Lamborghini rap in that. First I heard the song from Shabir Bhai, and Shabir Bhai is our backbone when it comes to music. Absolutely. And then they sent me to the shoot of Lamborghini, and then I met Ramji Baji over there, and it was, like he said, he's a genius. He makes things happen, you know. So it was a great experience. I loved it. Yes, you'll see more of it coming. Looking forward to that. Yeah, I'm sure this must be like one fun trip, and you both look lovely together. Tell us some moments in Dubai while shooting this song, and of course we know Ramji is all about cars and beautiful locations and making the video look so chic. What do you have to say about that?
I like when we were shooting together, it was definitely a treat. I kept telling him actually, the way you shoot, and you are like one of the most creative persons, I've met and I've shot with. So he is a perfectionist, and he just knows, how to put like a puzzle together. I really want to thank him. Definitely the whole team. The singers, they are so good. हम लोग पता है आज तक के ये गाना गुनगुना रहे हैं. It's like वो होता है ना, गाना बैठ जाता है. It's like that song. So Desi Tadka and everybody who is given this opportunity to me, and especially Rohan, because he got me into this song. So I'm very thankful. And it was an amazing experience. I hope मुझे और मौका मिले राम जी और आप सबके साथ काम करने का. Rohan, of course, needless to say that you were amazing and passionate. Thank you so much, And ma'am. I must say, chemistry with Ramji is so beautiful. You all have done so many songs together, and they all have been super hit. And we wish you all the luck for this one also. So tell us the whole journey right So from the basically- time you heard this song and To begin with, whenever he calls me, I trust him blindly actually. I know कि कुछ भी होगा वो बेस्ट चीज़ के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया होगा. ये हमारा आई थिंक सबसे ज़्यादा इन्होंने भी कुछ 150-200 गाने शूट किए हैं, बट एक एक्टर को उन्होंने रिपीट नहीं करा है. तो ही टोल्ड मी कि यू आर द ओनली वन जिसके साथ मैंने 10 गाने शूट करे हैं. तो मैंने तो गाना भी नहीं सुनता हूँ. जब ये कॉल करते हैं तो मतलब आई तो ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम. मैं गाना भी नहीं सुनता हूँ, बट गाना तो इतना अच्छा था, वो तो अलग बात है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया. इतना अच्छा गाना बन के आया थैंक्स टू देसी म्यूजिक तड़का. और तो मतलब इतना ट्रस्ट है कि मुझे पता है कि मतलब इनका कॉल आ रहा है तो सब चीज़ अच्छी होने वाली है. सारी अच्छी कास्ट का एक्सपीरियंस आपने रामजी के साथ किया है सर? पहला भी मेरा जो म्यूज़िक एल्बम था इन्हीं के साथ था, और आज मैंने 60 या 70 कुछ कर लिए हैं, वो भी इन्हीं के साथ ही है. और इनका भी कमबैक था, आई थिंक 1 साल के बाद वापसी हो रही थी, तो इन्होंने मुझे याद किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और मेरी मोटू देसी तड़का के लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली न्यू लेबल है और बहुत जल्दी इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं. और जिस तरह से मतलब सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है और इतना बड़ा तरीके से गाने को लॉन्च किया, आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड. और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा इतना इंतज़ाम इतना अच्छा होगा. तो आई एम ग्लैड कि मुझे मौका मिला. थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया, और आगे भी हम ज़रूर काम करेंगे दोबारा से. Ramji, what do you have to say again? We see, lavish luxury cars and high-rise buildings and skyscrapers. बहुत प्यारा वीडियो है, और देसी तड़का के साथ आपका एसोसिएशन रहा इस गाने में, क्या कहेंगे? आई वुड थैंक यस सर, ये मेरा पहला एसोसिएशन है देसी तड़का म्यूज़िक के साथ, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम एंड हिज एंटायर टीम. इज़ अ ब्यूटीफुल सोल. ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इनके साथ और अच्छे से थोड़ा जुड़ा हूँ. तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद यस सर. एंड इन्होंने मुझे शब्बीर भाई के साथ बहुत टाइम बाद में और शब्बीर भाई जुड़े हैं कोई काम को लेके. सो एब्सोल्युटली लव द सॉन्ग. एंड जब एक अच्छा ऑडियो आपके पास होता है, व्हेन यू हैव सच गुड सिंगर्स, जॉडी भाई, अनुष्का, बिग लव, पाजी हमारे, सो व्हेन यू हैव अ गुड ऑडियो तो आपका अपने आप मन करता है कि उसके ऊपर यार एक अच्छा विजुअल बनाए, तो आपका विजन और बड़ा हो जाता है. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक दी ऑडियो टीम, शब्बीर भाई स्पेशली, जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया है. एंड जब लैम्बोर्गिनी माइंड में आया, यू नो इट, एंड जो लाइन स्टेट इट एब्सोल्युटली स्टेटेड कि ये दुबई में ही शूट होना चाहिए, डाउनटाउन का जिक्र किया था लिरिक्स में. एंड माई फर्स्ट कॉल वॉज डायरेक्टली ही, एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि इन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया. ना पूछा क्या करोगे, कैसे करोगे, किसके साथ करोगे, कब करोगे. ही सेड रामजी दिस इज़ योर बेबी. शब्बीर भाई पे पूरा ट्रस्ट किया, उन्होंने बहुत खूबसूरत ऑडियो बनाया. और जब खूबसूरत ऑडियो मेरे पास था, फ्रीडम था, so you know I absolutely went by calling Rohan कि भाई I want to do this song with you, and I'm so thankful to Rohan. उन्होंने मुझे रियाज से मिलाया, and I got this beautiful cast, and even love at last minute. मेरे ख्याल से वीडियो के 2 दिन पहले सर का मुझे फ़ोन आया, यार ही इज़ अ गुड परफॉर्मर. मेरे को जस्ट उन्होंने भेजा वाला लेट्स डू इट. सो वी हैड हिम ऑन बोर्ड, एंड रोहन टोल्ड मी यू नो यार वी अगर यू नो ही विल बी देयर इन द वीडियो, इट विल ऐड मोर अप. तो उन तीनों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है वीडियो ने. एंड आई वुड लाइक टू थैंक रोहन, रिया, बिग लव, शब्बीर भाई, यस सर, एंड आई थिंक इट्स कम अप फैबुलस. एंड माई इंटायर टीम, वो इधर है नहीं, सो राहुल पाजी, जॉन पाजी, एंड माई इंटायर दुबई क्रू for helping me in this video. And thank you Parul for getting us all together for this beautiful day. And thank you everyone for coming today and giving your valuable time and helping us with this beautiful event. हम आपको ढूंढ रहे थे, बहुत Yes sir, yes sir.
तो मैं बोला अच्छा, तो मैं बोला मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरे को 2-4 दिन का टाइम दो, मैं सोचता हूँ। तो फिर मैं बोला यार क्या करूँ, और मैं बोला कुछ फ्रेश करते, कुछ नया करते हैं, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बाकी जो गाने हैं वो जैसे कुछ गाने जो मैं सुना रहा था रोमांटिक थे, थोड़ा मैच्योर थे, वो टाइप के थे। तो कुछ इनको मतलब अर्बन चाहिए था, कुछ फंक में चाहिए था, कुछ एकदम जैसी टाइप में चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कुछ नया कर दिया। फिर एक जो बच्चे की ज़बान पे, छोटे छोटे बच्चों की ज़बान पे, सबको आम जैसे आदमी चले, और एक ऑटो रिक्शा वाला भी गाय लेम्बर्गी का। तो मैं बोला चलो इस पे करते। तो मैंने काफ़ी गाने बनाए, और उसके बाद में फिर मैंने जॉडी भाई को बुलाया। मैं बोला आ जाओ जरा, कुछ गाने हैं उसको डब करना। तो जॉडी भाई को बुलाया, पूरा गाना डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद उसको पूरा रेडी किया। फिर यस भाई पहुँचे और उन्होंने राम भाई से बात की, तो फिर ये गाना हुआ। गाना पहले मेल, फिर मेरे दिमाग में है कि यार इसको फीमेल भी करते, क्योंकि मेल फीमेल होगा तो एक होगा। फिर अनुष्का को हमने वो किया, फिर अंबिका जी ने ज्वाइन की। उसके बाद फिर हम बोले कि यार अब ये म्यूजिक वन में कुछ एक होना चाहिए, कुछ है ना, ब्लू स्काई के नीचे आप बनेंगे 16 से सेल्फी की। मतलब थोड़ा मेरी बेटी जो है शारिया, वो छोटी ये सब चीज़ें देखते रहती है, तो ये देखो ऐसा डैडू ऐसा, डैडू ऐसा ऐसा। तो मैं उसकी भी बात सुना, मैं बोला कुछ करते। तो मैंने ये पूरे चीज़ को कलेक्ट किया, फिर ये एक गाना बनाया, और उसके बाद में फिर लव आया इसके अंदर। फिर गाना रेडी हुआ, और फिर राम भाई सुने, राम भाई ने कुछ कॉन्सेप्ट किया। तो मैं सोचा नहीं था कि मतलब, मैं बोला यार ठीक है गाना बड़ा हो गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर यश के साथ काम करने का एक ये फायदा है कि ये भाई एकदम फ्रीडम देते हैं कि भाई जो आपको लगे, जैसा लगे, बस अच्छा करो। बाकी ये कभी नहीं कि लिरिक्स क्या है, म्यूजिक क्या है। एक आजकल गानों में एक जैसे एक ग्रुप होता है ना, म्यूजिक सिग्नेचर म्यूजिक या डीजे स्नेह, ये एक सिग्नेचर म्यूजिक वो भी था। तो मैं बोला यार मैं लेकिन कुछ करूँ तो मेरा अपना क्या वजूद हो। तो इसके अंदर सारी चीज़ को जहन में रखेगा और गाना बना। उसके बाद राम भाई ने शूट किया, और आज गाना देखा तो गाना देख के बहुत अच्छा लगा कि यार कितना अच्छा गाना हो गया। और सारा मेहनत की, पूरी टीम की मेहनत है, सबकी मेहनत है। और जो रोहन और रिया ने पे शूट हुआ, बहुत अच्छा है जो हमने वो किया, गाने को जस्टिफाई किया। तो अपनी तरफ से तो हर आदमी बोलेगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी दही कोई खट्टी नहीं बोलता, बट हमने कोशिश की है एक अच्छा गाना बना के आप लोग के सामने। आप पब्लिक का प्यार मिलेगा, पूरे ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा, आप सब लोगों के माध्यम से लोग सुनेंगे, शेयर। शब्बीर भाई के पास मैंने सबसे पहला गाना रिकॉर्ड किया था हैप्पी हैप्पी, जहाँ से हमारी लेवल की स्टार्टिंग हुई। वो गाना हमने 2025 में रिलीज़ किया। फिर उसके बाद हम लैम्बोर्गिनी के ऊपर आ गए। बिग लव को मैंने हैप्पी हैप्पी में देखा था, उसका टैलेंट देखा था। तो जैसे शब्बीर भाई ने इस गाने को रिकॉर्ड किया, तो मैं रामजी बाजी को उनके पास लेके गया। तो इस जो कैटलॉग है लैम्बोर्गिनी, इसके दो कैप्टन हैं, शब्बीर भाई और रामजी भाई। शब्बीर भाई के पास पूरा फ्रीडम था, उन्होंने जॉर्डी भाई को लाया, अनुष्का को लाया। जब शब्बीर भाई के पास मैं पहली बार गया था तो इन्होंने अनुष्का के कुछ गाने सुनाए। तो मैंने इनको पूछा किसकी आवाज़ है, तो अनुष्का वहाँ पे बैठी थी, बोली इनकी आवाज़ है। मुझे लगा ये 15-16 साल की बच्ची लग रही है, इसकी आवाज़ इतनी बड़ी कैसे हो सकती। तो मैं सरप्राइज हो गया। तो मैंने शब्बीर भाई को बोला कुछ भी करके मेरे को इसका गाना दो। तो इत्तेफाक से वो गाना लैम्बोर्गिनी हो गया। मतलब मेरे को शब्बीर भाई ने सरप्राइज़ किया। जॉर्डी भाई की आवाज़, अनुष्का की आवाज़। और जब बिग लव का मैंने पहली बार हैप्पी हैप्पी में रैप सुना था, तो मुझे लगा कि ये तो शब्बीर भाई की आवाज़ लग रही है। लेकिन जब मैं बिग लव को मिला तो मेरे लिए वो सेकंड सरप्राइज था। फिर गाना अच्छा बना। फिर रामजी भाई को लेके गया मैं उनके पास, उन्होंने गाने को 2 बार सुना, क्योंकि बहुत सारे गाने सुने तो उन्होंने एक ही गाने को रिपीट करवाया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये गाना इनके लिए परफेक्ट है। फिर रामजी भाई को मैंने पूरा फ्रीडम दिया, आपके पास सबसे बेस्ट जो आर्टिस्ट है उनको लेके आप जिस लोकेशन पे गाना शूट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
गाना कंप्लीट करके आप लेके आओ, फिर उसके बाद अपने रिलीज़ का प्लान। तो रामजी भाई ने परफेक्ट जॉब किया, शबीर भाई ने बेस्ट गाना बना के दिया है, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हुआ है। और ये देसी तड़का म्यूजिक का सबसे बड़ा लेवल मतलब ये कैटलॉग है लैम्बोर्गिनी 2025 का। होता है मेरे साथ नहीं, आई थिंक सबके साथ हुआ होगा। और इवन ये गाड़ी जब हम चला रहे थे, मैं जब दुबई में गाड़ी चला रहा था तब भी बहुत अच्छा वेदर था, सब बहुत अच्छा लग रहा था, तब भी बहुत मज़ा आता था। रिया के साथ रोमांटिक ड्राइव पर हम निकल गए थे उसके बाद थोड़ा सा, तो इट वाज अ गुड फीलिंग। ऐसे कंटेंट थोड़ा बहुत रैपर भाई की तरफ से ज़्यादा मिलती है, कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव होता है हमेशा। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो जिन्होंने लिखा है तो उन्होंने कभी किसी को कहा होगा कि रेड शॉर्ट सी ड्रेस पहन के तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ तेरे को उठाने। यार रेड शॉर्ट सी ड्रेस पहन के आई भी है। तो रियाज रेड ड्रेस इसलिए पहन के आई थी क्योंकि गाने में रेड शॉर्ट सी ड्रेस आपने नोटिस किया? यस पहन के आई से रेड। एब्सोल्युटली शी इज शाइनिंग टुडे। बात किया जाए आप लोगों से, कहने का भी देखा जा रहा है कि हम पुराने गानों को उठाकर उनकी मेलोडीज को उठाकर अब हम सभी के बीच में रीअरेंज रिक्रिएट करके ला रहे हैं और ऑडियंस उसे सराहना और प्यार भी दे रही है। एज एन म्यूजिक में आप लोग लेकर आए और इन लोगों के लाइक्स में सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको जो पुराने गानों की मेलोडीज है उनको उठाकर लाना, नए तरीके से रीअरेंज रिक्रिएट करना और ऑडियंस मार्केट में लेकर आना, आपको क्या लगता है उन गाने की मेलोडीज को ऐसे ही रहने देना चाहिए, नए गाने लाना चाहिए, या फिर जो चल रहा है वो चलना चाहिए? नहीं सर, उनको वही रहने दिया जाए क्योंकि उनकी तुलना आप आज के गानों से कहाँ करें? वो जो मदन मोहन ने सो आई थिंक एज लॉन्ग एज दी ऑडियंस इज एंजॉइंग इट, मतलब किसी ने अच्छा उसको रेंडिशन दिया है, अच्छा म्यूज़िक किया है, अच्छे एड ऑन्स किए हैं, तो एज लॉन्ग एज ऑडियंस एंजॉय करती है और सबकी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है मुझे लगता है। तो एज लॉन्ग एज एक पर्सन उस गाने को नई तरीके से जब बनाया जाता है, अच्छा बनाया जाता है, तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एंड क्योंकि जैसे आज हमने ये गाना किया है, शायद 20 साल बाद कोई लैम्बोर्गिनी को भी रिक्रिएट करेगा। आज इसका जो शबीर भाई ने इतने प्यार से गाने को बनाया है, ऑब्वियसली कभी कल शबीर भाई के साथ ही जुड़ के कोई उसको और बड़ा करेगा तो वाई नॉट, आई थिंक ही विल ऑल्सो बी प्राउड ऑफ इट। बट अगर इसको कोई गलत वे में छेड़खानी करे तो ही विल ऑल्सो बी डिसअपॉइंटेड। और ऑडियंस को ऑटोमेटिक, आई थिंक ऑडियंस सबसे समझदार है, आई थिंक ऑडियंस को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके कान हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। हम तो एक गाने को बनाते हैं, हमारा बच्चा होता है, लेकिन मुझे लगता है जो ऑडियंस सिलेक्ट करती है आज का जो जेनजी है, व्हाट दे लाइक, यू नो, इफ दे आर लाइकिंग इट, इट्स देयर, यू आर नॉट गॉन रॉन्ग। सो आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस विद एवरीवन। और मुझे लगता है लेजेंड्स और लेजेंडरी लोग, उनकी कभी किसी से तुलना नहीं हो सकती, दे आर अबव ऑल। बट अगर कोई अच्छा रेंडिशन मिलता है कोई चीज़ का और लोग इन्जॉय कर रहे हैं, आई थिंक तो उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए।